Okay, so now we start with chapter number 3, and the name of the chapter is pair of linear equations in two variables. Right? See, we have chapter 3, and the name is pair of linear equations in two variables. Now, first of all, as the name suggests, pair of linear equations. इसमें बहुत सारे terms हैं. Pair, already we know that इसका मतलब होता है two. लीनियर भी हमें पता है कि इसका मतलब होता है जब डिग्री 1 हो. राइट. इक्वेशन है, इक्वेशन भी हमें पता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है. दैट इज द इक्वेशन. देन लास्ट में टर्म है टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स, इसका क्या मतलब हुआ टू वेरिएबल्स का? कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, से फॉर एग्जांपल दिस, लेकिन उसमें दो वेरिएबल्स हो, अलग अलग दो अल्फाबेट्स आ रहे हो. So this is complete the name of this chapter, pair of linear equations in two variables. Now, let us start with the pair of linear equation in two variables. Then there are certain general points that we have to remember before doing this chapter or before solving the equations. Let us start with that. Now say for example, you have your exercise 3.1. अब आपकी 3.1 में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, जैसे कि आप करते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको बनानी होती है. तो सेम वे इज एक्सरसाइज 3.1 इन विच यू आर गिवन द स्टेटमेंट और द प्रॉब्लम्स. उसको आपको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली. वो आप बहुत इजीली कर सकते हो बिकॉज दिस वी हैव डन इन क्लास 8 ऑल्सो, 9 ऑल्सो एंड 10 ऑल्सो. एल्जेब्रिकली भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको हम ग्राफ पे भी बना सकते हैं. राइट. तो अभी इसके बाद वाला टॉपिक करते हैं पहले हम. दैट इज on page number 44. Topic is 3.3, graphical method of solution of pair of linear equations. The topic that we have is graphical method of solution of a pair of linear equations. Right? This is the main topic और third chapter में से, इस topic में से 110% something or the other is asked in your board exams. Okay. Now, to understand this, first of all, we have graphical method of solution. We have the term graphical method of solution of pair of linear equations. मतलब हमारे पास दो linear equations हैं और उन दोनों का हमारे पास solution है, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना. राइट. वी आर हैविंग वन इक्वेशन, टू इक्वेशंस. इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है. नाउ एक्सप्रेसिंग बोथ ऑफ दीज ऑन ग्राफ, दैट इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. राइट. अब वो होते कैसे हैं? लेट अस सी दैट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर वी हैव a pair of linear equations, whenever we have a pair of linear equation, for linear equation I'm writing LE, linear equations. Whenever we have a pair of linear equation, it can be of two types. First is inconsistent. And second can be consistent. Both these, consistent and inconsistent, are being given the name according to the thing that if linear equation has solution
और हैज नो सोल्यूशन। मतलब जिस भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है या सोल्यूशन नहीं है, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन they are classified as inconsistent and consistent. You can give this name as on the basis of solution. On the basis of solution. On the basis of solution, we can say that linear equations can be inconsistent, it can be consistent. अब inconsistent क्या होता है? जिस भी linear equation का we don't have solution, when there is no solution, then we call it inconsistent. And whenever we have the solution, we call it consistent. Again, I'm telling you, linear equation on the basis of solutions means whether they are having the solution or they are not having the solution. There are two types. One is inconsistent, one is consistent. Inconsistent is when the pair is not having any solution. And consistent is when the pair of linear equation have the solution. Now, now the consistent linear equations can have two more parts. One is if it has just one solution or it has many solutions. So this can also be the difference. यहाँ तो है ही नहीं solution, लेकिन consistent वाली में solution हो सकता है, एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, और अगर है तो वो कितने हैं, राइट? सो फॉर दैट वी आर गिवन सर्टेन थिंग्स. लेट अस सी देम. सो वी हैव टू सी, लाइक हमारे पास ये ग्राफ बनता है और ये कोई हमारी इक्वेशन, एक ही इक्वेशन बन गई और एक ऐसी इक्वेशन बन गई. जब दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो दो ही लाइन बनेंगी. दिस आई हैव टोल्ड यू. अगर हमारे पास ये ग्राफ है और हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ये हमने करा पिछले टॉपिक में. नाउ सिंस वी आर हैविंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो वी विल बी हैविंग टू लाइंस. तो अब एक लाइन सपोज ये है, एक लाइन सपोज ये है, तो ये डिपेंड करेगा वेदर जो हमने ग्राफ बनाया है उसके ऊपर जो दो लाइंस आई हैं, आर दे इंटरसेक्टिंग और दे कैन बी पैरेलल ऑल्सो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक के ऊपर एक हो, right? So all these, depending on all these, we can find out whether they are consistent or whether they are inconsistent, right? So means it depends on the behavior of the lines that are drawn on the graph. So now then we have the next thing is behavior of lines. कौन सी lines? जो हम लीनियर इक्वेशंस बना रहे हैं उनसे जो सोल्यूशन की लाइन बनाएंगे ग्राफ के ऊपर, वो वाली लाइन. Behavior of lines representing a pair of linear equation in two variables. Now, अब हमें ये ध्यान देना है कि like suppose we have drawn the graph, and on the graph the two lines that we are having, they are parallel. This is the sign for parallel. That means if the lines are parallel on the graph we are drawing, that means that these lines are inconsistent. And when these lines are inconsistent, this we have done already. अगर inconsistent है तो solution होगा no solution. Means there is no solution. If on the graph after drawing the lines we get parallel lines, that means there is no solution. Now there is a second case in which we can say if the lines are intersecting. If the lines are intersecting, और जब इंटरसेक्ट करती हैं स्ट्रेट लाइंस, ऑब्वियसली वो एक ही पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं देन वी कॉल इट कंसिस्टेंट. और हम ऊपर कर चुके हैं, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होगा. वी हैव डन इफ दे आर कंसिस्टेंट तो सॉल्यूशन होगा, बट देयर वर टू थिंग्स, दैट इट कुड बी वन सॉल्यूशन, इट कैन बी मेनी सॉल्यूशंस. Now you can just give a focus on this. Since the line are intersecting at just one point, that means they will have the solution, but there will be just one solution, right? Then next we have if the lines are overlapping.
जो दो लाइंस हैं वो ओवरलैप कर रही हो, एक के ऊपर एक लाइन आ रही हो, वी कॉल देम कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। अगर वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो उस केस में भी वी कॉल इट कंसिस्टेंट ओनली। रिमेंबर दिस इज द मेन थिंग। अगर कोइंसिडेंट है उस केस में भी दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट ओनली। अब कोइंसिडेंट है, एक ही लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, मतलब जो सॉल्यूशंस एक लाइन के होंगे वही दूसरी लाइन के होंगे, और बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे बिकॉज हर पॉइंट एक ही पॉइंट है। दैट मीन्स दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। infinitely many solutions. So these are the three things that we have to keep in mind. बहुत ध्यान से हमें इन्हें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं तो दे आर टर्म्ड एज इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं दे आर टर्म्ड एट कंसिस्टेंट, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो भी उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं हम। ओनली डिफरेंस इज दैट दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि whenever we are having consistent lines means coincident lines जो एक के ऊपर एक होती है, overlapping lines होती हैं, तो though they are consistent but also they are known as dependent because one line is dependent on the other, so we call them consistent but dependent lines. So please make a note on this that intersecting lines will just be consistent with one solution and coincident lines will also be consistent but they will also be dependent. Okay, so now this must be clear. You can take the screenshot of it and then we move on to the other flow chart by which it will be little easy for you. So I'm just clearing it and then we move on to the other thing. This is the main thing that we have to remember for this graphical method. अब इसी टर्म में इन ग्राफिकल मेथड हम इसको बहुत इजीली एक चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं. लाइक से फॉर एग्जांपल वी राइट सीरियल नंबर हियर, then we will be writing, we make one chart and draw the lines like this. Okay, now here we write serial number, here we write pair of lines, then here we write number of solutions, here we write graphical representation, and then here we write compare the ratios. Like this. We have serial number, pair of lines, number of solutions, graphical representation, and compare the ratios. Now wait. Now, say for example, first of all we take inconsistent lines. जो pair of lines है वो हमारी है inconsistent. Inconsistent का हमने अभी कर लिया, that there won't be any solution, no solution. और जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आती हैं हमारी पैरेलल लाइंस. अब उसी केस में आपको उनके रेशियोज कंपेयर करने हैं, एंड फॉर दैट वी हैव a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. अब ये a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है? This will be more clear when I'll give you the example. Now, second part is we take the consistent lines. कंसिस्टेंट लाइंस का ज्यादा भी सोल्यूशन हो सकता है, एक भी हो सकता है. सो राइट नाउ वी आर टेकिंग अबाउट वन सोल्यूशन. जब वन सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. दिस ऑल्सो वी हैव डन अर्लियर. द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग.
And when we are comparing the ratios, it will be like this: A1 upon A2 will not be equals to B1 upon B2. राइट इसको आप टेबल के थ्रू लर्न कर लेंगे तो आपको कुछ भी जो हमने पहले थ्योरी करी है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी. थर्ड पार्ट ऑल्सो इज कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट. कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट. कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट के क्या होते हैं? बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. मेनी सॉल्यूशंस. बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, कितने भी हो सकते हैं. राइट और वो कब होती हैं? जब लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होती हैं. कोइंसिडेंट लाइन मींस एक के ऊपर एक होती हैं. उसका व्हेन वी कंपेयर द रेशियोज देन वी हैव A1 upon A2 is equals to B1 upon B2, but that is not equals to C1 upon C2. This is the table that you have to draw in your notebook like this. Once you learn this table, तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप से ही क्लियर हो जाएंगी. And I am telling you, you can keep my words in writing that definitely questions will be there from this table. आपने ये टेबल कर लिया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा. Okay. So now after completing this table, we move on to our exercise 3.2 that we have, and you can first mark it from page number 46. On the top there are 3 points given. Please mark those 3 points. Then in article table 3.4, one table is given. You have to mark that table. Then also on page number 47, we are given 3 points. Please mark them. And all that you are marking, that I have compiled in this one table. Okay. Now we move on to exercise 3.2. अब 3.2 में क्या है हमारे पास? First question, let us see. Form the pair of linear equations of the following problem and find their solutions graphically. These two parts are same as they are done in exercise 3.1. मतलब आपके पास वर्ड इक्वेशंस हैं, वर्ड स्टेटमेंट्स हैं, उनसे आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है और उनका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली. This is little lengthy question, so I'll solve it and then I'll let you know. Now, let us first come to question number 2, 3 and 4, which is based on this table. Now, question number 2, on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. अब हमें क्या करना है? In exercise 3.2, suppose we have question number 2 and we take the third part. Let us take the third part. Now what is there in third part? We are given, question 2 third part, we are given 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. Then we are given 2x minus y plus 9 equals to 0. अब इसमें हमें कंपेयर करने हैं रेशियोज A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2. अब वो A1 upon A2 होता है द कोफिशिएंट ऑफ x, B1 by B2 है कोफिशिएंट्स ऑफ y और C1 by C2 है द कांस्टेंट टर्म. Now one thing that you have to make sure before doing these questions is that ऐसा नहीं हो कि कई बार आपके पास ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, एक इक्वेशन तो ऐसे आ गई और दूसरी इक्वेशंस आपके पास ऐसे आ गई. तो या तो कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वल टू के इधर हो या कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वल टू के इधर हो. दिस यू हैव टू मेक श्योर. दोनों कांस्टेंट टर्म को इधर ब्रिंग देम टू द लेफ्ट साइड और ब्रिंग बोथ द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड. इफ डायरेक्टली दे आर गिवन ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट देन इट इज वेल एंड गुड, देन यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग. राइट, तो इस बात का आपको पहले ध्यान रखना है. Now in the given question we are already given the constant term on the left hand side. So now let us see A1 upon A2. A1 upon A2 मैंने बोला जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी टर्म्स होंगी, कोफिशिएंट्स होंगे. तो A1 upon A2 is 6 upon 2. Then we write B1 upon B2. B1 upon B2 यहां से कितना आएगा? साइन के साथ लेना है तो इट विल बी -3. With y there is no number, that means -1. We can also write it 3 upon 1. That is not a problem. Then C1 upon C2 क्या आएगा हमारे पास? 10 upon 9.
Now we have to write them like this. And 6/2 also, first of all, we can reduce. It will be 3/1. अगर हम clearly देखें तो A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2. अगर हम ऐसे पुट करते हैं, A1/A2 में 3/1 है, B1/B2 में भी 3/1 है, लेकिन C1/C2 में कितना है? 10/9. These two are equal, but the third one is not equal. राइट मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है. अब आपकी ये वाली जो कंडीशन है, you can go on your table and just see in which part you can see this condition. A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. That means what type of lines are these? Consistent. फाइन. आपसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में. बाय कंपेयरिंग द रेशियोज, मतलब आपको इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. बिना ग्राफ बनाए आपने सिर्फ इन दोनों लाइन को देखने के साथ बोल दिया दैट दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट. आपको बस यही बोलना था कि कंसिस्टेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है. अब कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगी. राइट और आपने ये प्रोसेस करा है. अगर आप इसको नहीं भी करो, यहीं पर देखो डायरेक्ट 6/2, 3/1 और 10/9. तो बहुत अंडरस्टूड है कि ये दोनों तो मैच हो रहे हैं, लेकिन ये वाला मैच नहीं हो रहा. डेफिनेटली ये है. अगर उन्होंने पूछा किस टाइप की लाइंस होंगी, तो आप बता दो कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी. अगर उन्होंने पूछा कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बता दो कि मेनी सॉल्यूशंस. अगर उन्होंने पूछा पेयर ऑफ लाइंस का नेचर क्या है, तो यू कैन टेल दैट दे आर कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट. कुछ भी पूछ सकते हैं. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए भी पूछ सकते हैं, टाइप ऑफ लाइन के लिए भी पूछ सकते हैं, और बिहेवियर ऑफ लाइन के बारे में भी पूछ सकते हैं. फाइन. Now, similarly, we have part third on comparing the ratios A1/A2, B1/B2, C1/C2. Find out whether the following pair of equations are consistent or inconsistent. Same thing जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में करा है, वही चीज आप क्वेश्चन नंबर 3 में करोगे. Then we move on to the next question. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम. करने का मेथड एंड ऑल एवरीथिंग इज सेम, बट लेट अस सी हाउ टू डू. लेट अस टेक दी थर्ड पार्ट ओनली. क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट. पहले तो हमें ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर इफ कंसिस्टेंट देन ओनली वी हैव टू ऑब्टेन द डेटा. अगर कंसिस्टेंट आती है तभी हमें वो निकालना है. मतलब अगर लाइंस पैरेलल आ गई विदाउट सॉल्यूशन तो हमें कुछ नहीं निकालना. सो नाउ लेट अस सी. थर्ड पार्ट लेकर चलते हैं हम. 2x plus y minus 6 is equals to 0. And second equation we have 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. अब फर्स्ट को देखो, कंपेयर करते हैं. पहले तो हमें यही निकालना है कि whether these are consistent or inconsistent. तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी लाइक दिस ओनली. और आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओ तो सेकंड को हम अगर इसको 2 से रिड्यूस कर दो तो 2x minus y minus 2 is equals to 0 भी लिख सकते हैं. Now let us compare. A1/A2 will be 2/2, that means 1/1. Then B1/B2 will be +1/-1, मतलब कि वो -1 ही आ गया, मतलब प्लस और -1. Then we have C1/C2 will be -6/-2, जिसको आप लिख सकते हो 3/1. अब अगर हम देखते हैं तो A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के. ध्यान से देखो, यहाँ पर 1/1 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 1/-1, तो ये इक्वल नहीं आ रहा. जब पहली कंडीशन इक्वल नहीं तो सेकंड तो कंडीशन इक्वल आनी ही नहीं है. ठीक है ना, हमने उसको देखना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन अगर इक्वल नहीं आती तो उसके बाद देयर इज नथिंग टू बी सीन. ठीक है. नाउ वी हैव गॉट दिस दैट A1/A2 is not equals to B1/B2. That means what type of lines are these? Consistent. That means having one solution. एक solution आएगा, और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो डेफिनेटली द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो इसमें अब हमें क्या करना है, ये हमें पता चल गया कि कंसिस्टेंट है, और क्वेश्चन ने कहा था इफ दे आर कंसिस्टेंट देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन निकालने के बाद ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद हमें दिखाना है कि लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, क्योंकि हम A1/A2 और B1/B2 को ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं. ठीक है. तो चलिए लेट अस मूव टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशंस. हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन.
अब सोल्यूशन निकालना भी बहुत सिंपल है। जैसे सोल्यूशन हम इसमें निकालेंगे वैसे ही 3.2 में जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, उनके लिए निकालेंगे। तो पहले एक ही इक्वेशन के लिए काम करते हैं। लेट अस वर्क फॉर वन इक्वेशन ओनली। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? Then what we do? We start giving the values to y or to x and we get the values of y. Now say for example, if x को you have given the value as 1 या give the value as 0. x को 0 जब आप वैल्यू दोगे तो you will get -0, मतलब y will be -6. And we make one box here like this. This is nothing new, ये बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं, तो ये सब पता है आप लोग को how to find the values x और y. आपने x की वैल्यू ली है 0, तो y की वैल्यू आ गई -6. देन वी टेक इफ x इज -1, देन y व्हाट विल वी गेट? -6 -2 इंटू -1 मीन्स -6 एंड +2 मतलब -4. x is -1, तो दिस विल बी -4. यू कैन टेक आउट 4 वैल्यूज. अगर ये 1 है तो कितनी आएगी? -6 -2 एंड 1, तो -6 -2 मतलब -8. अगर हम 1 ले रहे हैं तो ये 8 आ गई, राइट? These are the values that I have taken for equation 1. Similarly, you can take out the values for equation 2. अब ये तो हमारी वैल्यूज निकल गई. ऐसी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का कोई ग्राफ, कोई टेबल मिल जाएगा हमें, राइट? नाउ first thing we have done that we have taken out these are consistent. Second thing what we have done, we have taken out the solution of both the equations. Now third thing what is left is that we have to represent these two equations. इसका मैंने निकाल दिया solution, इसका आप अपने आप निकालेंगे. That we have to represent now these two equations on graph. और graph पे represent करना also is not new. उसको कैसे करना है ये मैंने last time भी आपको बताया था. Like we have this type of graph. We know that this is x and this side it is x dash. Then y dash and y. This very well we know. On the center we have origin. On the right of x we have the positive numbers 1, 2, 3, 4 and so on. Here we have the negative numbers -1, -2, -3 and so on. यहाँ पर हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड ऑन. यहाँ पर हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, -5, -6 and so on. Up, I'll tell you how to plot these points on this graph. Similarly, you will be taking out the values for second equation and you will be plotting them. अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है? इफ द x is 0, y is -6. x 0 है तो y -6 है. y -6 कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर. तो उस पर या तो डॉट बना दो या फिर एक क्रॉस बना दो, अप टू यू. छोटा सा डॉट बना दीजिए, छोटा सा क्रॉस बना दीजिए. The next move we have -1. If x is -1, y is -4. If x is -1, y is -4. मतलब जहां पर -4 है वहां पर एक छोटा सा क्रॉस बना दीजिए. सॉरी, नॉट हियर. सॉरी, वेरी सॉरी. 1 के नीचे मतलब क्रॉस बनेगा यहाँ पर, -1 के नीचे, राइट? यहाँ पर -4 y का आ रहा है और -1 ये आ रहा है. दैट मीन दिस विल बी द पॉइंट. देन x is 1, y विल बी 8. x 1 है और y आएगा 8 यहाँ पर, राइट? अब आप ध्यान से देखो, आपके पॉइंट्स आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर. मतलब 2 पॉइंट्स तो यहाँ आ रहे हैं, 1 पॉइंट यहाँ आ रहा है. तो या तो आप इसको पॉइंट को ऐसे प्लॉट कर दो ताकि ये दोनों पॉइंट एक लाइन में आ जाए, या फिर इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन में ले लो ऐसे. अब आप ऐसे नहीं लोगे. मान लीजिए आपके 2 पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं और एक ऐसे आ रहा है, आप इसको ऐसे नहीं घुमाओगे, राइट? और वो पॉइंट्स आपके आते क्यों हैं? दैट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यूज दैट यू हैव टेकन. मतलब हमने 3 सोल्यूशन लिए ना, एंड आई हैव टोल्ड यू टू फाइंड आउट 5 सोल्यूशंस. जब आप इसके 2 सोल्यूशंस और निकालेंगे तो यू विल गेट एनी 3 पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे होंगे. So you have to join those 3 points. Now say for example, I am joining these 2 points, नीचे वाले, like this. I have joined these 2 points.
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आई हैव कौन सी वाली इक्वेशन, जो मेरी पहली वाली इक्वेशन थी, राइट। सिमिलरली जब आपका सेकंड पार्ट का जब आप सोल्यूशन निकालोगे तो उससे भी आपको एक ऐसी ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बट वो स्ट्रेट लाइन इस लाइन को कट करेगी एनीवेयर एट वन पॉइंट, कहीं पर भी किसी पॉइंट पर टच करेगी, किसी भी पॉइंट पर। और क्यों, आपको कैसे पता है कि वो टच करेगी क्योंकि जब आपने सॉल्यूशन निकाले थे तो वो a1/a2 was not equals to b1/b2, indicating that the lines are intersecting lines, right? So I hope that this question is clear. तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं. Now you have to do 3.1, 3.2, and then in the next topic we will be starting with question number 5. Till today you are supposed to complete